Good morning, children. How are you? I hope you are fine at your home. Again, I'm here with you. We are giving you the classes, online classes on YouTube also, na? I hope you have understood the chapter which I have taught you till Saturday. That was chapter handed dress first. Got it? Is it clear? There are three characters: Paddy and Wanda, and one more is also. Okay, now? And you know, Peggy and Wanda. And introduction of Peggy, Maddie and Wanda. जो Peggy जो थी, you know, कि जो she was a we can say rich girl, लेकिन उसके अंदर सेंसिटिवनेस, मतलब थोड़ी सेंसिबल थी वो बच्ची. वो समझ सकती थी कि कोई जानवर वगैरह अगर सामने अगर मरे तो उसको दुख होता था. लेकिन वो जो लड़की थी ना, मैडी जो थी वो सेम वांडा जैसी थी. गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना. लेकिन उसने अपनी गरीबी छुपाई थी. क्यों? क्योंकि अगर वो पैगी का साथ नहीं देती तो अगला जो टारगेट था वो मैडी थी, वांदा नहीं थी, है ना. और वांदा से वो क्वेश्चन पूछते थे, क्या कि डू यू हैव 100 ड्रेस, तो कहती थी यस आई हैव 100 ड्रेसेस. यस और नो. तो इस तरीके से चलता है उनका, है ना. तो हमने यहाँ तक अपना रीड कर लिया था कि when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand. एम्ब्रेस फील करती थी और उसके हाथों में जो मार्बल्स होते थे उनको गिनती थी उस चीज से दूर होने के लिए. ओके ना. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. Exactly क्या होता है कि वो कभी भी वांडा की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं करती, बट पैगी ने क्या किया, वो ड्रेस गेम इन्वेंट कर लिया. In the same way it was going on. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Today, both the girls, जो start हुआ, both were also late to reach the school. But what happened? She was happy. Why she was happy? Because at that time they did not make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. Without paying any attention, she was doing her work. 8 times 8, let's see, वो ऐसा कुछ काउंट कर रही थी अपने मैथ से रिलेटेड. She wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." What did Maddie decide? Maddie decided to write a letter to Peggy, not to make fun of Wanda. क्योंकि मुंह पे वो बोल नहीं सकती थी, उसने सोचा कि मैं राइटिंग में लिख के दूंगी ताकि इसको पता चल जाए कि हमें वांडा की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard. तभी वो रुकी और उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में पाया. वो सोचने लग गई कि आई वुड बी इन स्कूल यार्ड ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. अगर मैं ऐसा लेटर लिखूंगी, इफ आई वुड राइट दिस लेटर दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, देन आई वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पैगी. सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. क्योंकि वो भी उससे से वही क्वेश्चन पूछ सकती है कि वो ड्रेसेस कहाँ से लाई जो ये पहनी हुई है. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones. और Maddie को क्या आंसर देना पड़ेगा कि that is yours, ये तुम्हारी हैं old ones. That Maddie's mother had tried to disguise with, जो कि मैडी के मदर ने उसको चेंज किया थोड़ा. न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. यानी जो ड्रेसेस वो पहनी हुई थी वो भी पैगी की थी. कौन पहनी हुई थी? मैडी. अगर उसको ये पैगी अगर पूछ ले तुम ड्रेसेस कहाँ से लाई, तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि मैडी की जो मदर ने उस ड्रेसेस को थोड़ा चेंज किया और उस बच्ची को पहना दिया. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well. Then what did she think?
ये इस पे डिपेंड, इट इज डिपेंड ऑन पैगी दैट शी वुड स्टॉप और नॉट स्टॉप, बट आई वुड नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अपने हाथों में उसने अपने अपने बालों में उसने अपने हाथ ऐसे चलाए और she was thinking that I should give up this type of thought, कि मैं यहाँ से निकलूँ, इस ऐसी सोच से बाहर निकलूँ. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. कहता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो जो नोट लिखा था सी हैड टॉर्न इट आउट, उसने उसको फाड़ दिया. सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. हु वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड? वांडा, सॉरी मैडी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, एंड एवरीबडी लाइक पैगी. शी इज द बेस्ट गर्ल इन द रूम. 13. Peggy would not possibly do anything that was really wrong, she thought. And she was thinking that Peggy is right in her own, and she would not take any wrong decision. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyard. And if I would think about Wanda, she is a normal girl who is living in Bogging Heights, and she had no friends in the school. She is alone. She scarcely ever said anything to anybody. वांडा के बारे में बोल रही है कि वांडा कभी किसी को कुछ कहती नहीं है. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Only one time she spoke, that was about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming, and she remembered another that was brilliant jungle green with red cash. ये सब कुछ याद कर रही हो ड्रेसेस के कलर के बारे में. He would look like a Christmas tree in that, she girls had said in pretend admiration. कह रही है कि वो अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती है वांडा, तो कहती है मेरे पास ये है ये है ये है, तो गर्ल्स उसको मजाक उड़ाते हैं. वो प्रिटेंड का मतलब था नॉट रियल, बहाना करके कि यू वुड बी लाइक अ क्रिसमस ट्री. जब तुम उन यूनिफॉर्म्स को पहनोगी, ड्रेसेस को पहनोगी, तो मैं क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी. वो लड़कियां वांडा का मजाक बना रही हैं वहां पे, उसकी बड़ाई नहीं कर रही. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. What happens? Maddie began to wonder. Got it? Is that clear? Got it? So she was also wondering, she would ask these type of questions to Wanda. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest, क्योंकि उसके स्कूल में ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था, उसके बारे में सोचने लगी कि कौन जीतेगा. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. गर्ल्स के लिए था कि ड्रेस डिजाइन करके, है ना, और बॉयज के लिए था मोटरबोट्स के लिए. Probably Peggy would win the girls medal, and you know, कह रही है कि जो गर्ल्स का जो कंपटीशन था, who would win? पैगी जीतेगी. Peggy drew better than anyone else in the room, क्योंकि सबसे बेस्ट कौन है? पैगी है. At least that is what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win, क्योंकि सभी को पता था कि इसी फिल्म स्टार स्टाइल में कुछ ऐसा कुछ ड्राइंग करेगी ड्रेसेस का जिससे वो जीत जाएगी. And Maggie was sure about that. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. और जो रिजल्ट आने वाला वो कब है? Tomorrow means day after, अगले दिन. The next day it was drizzling, मतलब हल्की हल्की, very light rain.
बूंदाबांदी होती है ना उसे। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। जो पैगी का अम्ब्रेला था, छत्ता जिसको बोलते छाता, उसके थ्रू वो स्कूल में एंटर कर गई। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्सो की, उन्होंने उसी दिन भी वांडा का कोई वेट नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओल्ड स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिंग हाइट्स। वो जो रास्ता जाता था रेलवे ट्रैक से होता हुआ ओल्ड स्ट्रीट में जाता था, जो रेल रोड ट्रैक है उसके ऊपर से, और पहाड़ियों में चढ़ता हुआ बोगिंग हाइट्स में निकलता था। और वहां से कौन आता था? द गर्ल वांडा। Anyway, they weren't talking chances on being late today. They weren't taking chance. क्योंकि उस दिन क्या होना था? That was the day of result. Result का दिन था। तो they never ever wanted to get late. Because today was important. The day was very important for them. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Miss Mason is the name of the teacher. पैगी बोल रही है उससे, वांडा से, उससे मैडी से कि मिस मैसन क्या रिजल्ट अनाउंस करेंगी आज? ओह, आई होप सो, द मिनट वी गेट इट, विदिन ए मिनट वी विल गेट द रिजल्ट। शैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और मैंने कहा यस पैग यू विल विन, तुम श्योरली तुम जीतने वाली हो। होप सो शैड पैगी इगरली। पैगी ने कहा हाँ हो सकता है, मुझे भी उम्मीद है। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were all drawing all over the room. Within a minute, when they entered in the classroom, देखा कि हर जगह पे drawings है, and every lace and windsill, dazzling colors and brilliant. शानदार colors में सभी drawings सजी हुई थी। Lavish design all down, very good. Lavish means very good. All drawn. Got it? Is that clear? Wrapping papers में सभी ड्राइंग सजी हुई थी। There must have been 100 of them, all line up. सारी की सारी 100 की संख्या में सभी लाइन अप एकदम से। These must be the drawing for the context. हो सकता है ये ड्राइंग किसके लिए है? कॉन्टेक्स्ट के लिए हो। The both the girls, जब उन्होंने देखा सबकी 100 की लाइन में, 100 की संख्या में ड्राइंग्स लगी हुई है, बड़ी सुंदर सुंदर लगी हुई है, तो कह रही है कि सभी ड्राइंग के लिए आई होंगी, कॉन्टेक्स्ट के लिए होंगी। They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर बच्चे ने देखा उनको ड्राइंग 100 ड्रेसेस को, जो ड्राइंग्स थी ड्रेसेस की, और सभी उसको सरप्राइज हुए, बड़ा एडमायर भी किया उन ड्रेसेस को। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही क्लास असेंबल हुई, सभी इकट्ठे हुए बच्चे, मैसन ने विनर्स अनाउंस करना शुरू कर दिए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज। ये जैक जो है ये बॉयज के लिए का विनर था। सी सेड एंड इज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12। जो उसका जो डिजाइन मोटरबोर्ड का बनाया था आउटबोर्ड का, वो रूम नंबर 12 में है। Along with the sketches by all the other boys, वो सभी sketches जो सभी boys ने बनाई थी ना, उनके सबके साथ। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most. रही बात गर्ल्स की, who is announcing this result? Miss Mason कह रही कि only 1 or 2 we can say sketches were submitted. One girl and room 13 should be proud of her. लेकिन एक लड़की जिसपे रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, और उस लड़की ने 100 डिजाइन्स बनाई। आप अनुमान लगा सकते हो कौन हो सकती है वो लड़की जो 100 ड्रेस बोल रही थी, ये थी वो 100 ड्रेस। ठीक, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी डिफरेंट हैं और सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, any one of the drawing is worthy of winning the prize. कह रहा है कि जजेस की ओपिनियन में इन 100 ड्रेसेस में कोई भी ड्रेस ले लो आप, that is best. I am very happy to say that Wanda Protonsinki is the winner of the girls medal. टीचर ने क्या अनाउंस किया कि जो वांडा
सी इज द विनर ऑफ द मेडल, यानी सी इज द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट। ये है वो लड़की जो विनर है, उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं और 100 में से कोई भी ड्रेस उठा लो डिजाइंस ड्रेसेस के, दीज आर द बेस्ट। और एक दो ही सबमिट किए दूसरे बच्चों से। तो वो जो लड़की वांदा जिससे चिढ़ाती थी वो लड़कियां, वो वांदा ने एक्चुअल में 100 ड्रेस बनाई, डिजाइंस बनाई। 100 ड्रेसेस नहीं थी उसके पास, लेकिन इतना टैलेंट था कि उसने 100 डिजाइंस बना दी ड्रेसेस की। यहाँ पे क्या सीख रहे हैं हम कि चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके कपड़े शैबी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन टैलेंट हर किसी के पास होता है। और उस लड़की के अंदर टैलेंट था और उसने वो टैलेंट शो किया 100 ड्रेसेस बना के। तो हु इज द विनर? वांदा पेट्रोनसोपी। वांदा इज द winner. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause. The teacher was announcing. Teacher कह रही थी कि unfortunately, दुर्भाग्य से Wanda is not present in the school. She is absent for a long time, so she would not receive the applause that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. इसीलिए हमने उसका सम्मान कल के लिए टाल दिया है, कल वो आप आएगी स्कूल। नाउ क्लास यू मे फाइल राउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर ड्राइंग्स, एग्जीक्यूट ड्राइंग्स। क्लास को ऑर्डर दिया टीचर ने कि सभी लाइन से हो जाओ और उस बच्चे की ड्राइंग्स देखो। द चिल्ड्रेन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, बहुत बच्चों ने बहुत ही प्रशंसा की उसकी। एवरीबडी वाज प्रेजिंग वांदा and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. यहाँ पे क्या है, boys को भी चांस दिया गया। एक्चुअली boys are not interested in this type of dresses design। उसका अलग ही कुछ, उनका अलग ही चलता है ना। वो तो उनका मतलब शौक ही अलग होता है boys का। फिर भी उनको मौका मिला आने का। Put their fingers in their mouth and whistles। ये तो काम ही है लड़कों का, निकम्मे कहेंगे। मतलब यहाँ मजाक कर रहा हूँ बच्चों, यानी पुट देयर माउथ ऑन फिंगर्स और विशलिंग करने लग गए। और उसके बाद में टीचर आए, कोई जेंट्स टीचर, तो बढ़िया काम हो जाए उनके लगे 2-4। सो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर मेकिंग दे वर मेकिंग अ नॉइज। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। क्यों? यस, द राइटर इज आल्सो सेइंग द बॉयज आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। लुक बैक, विस्पर मैडी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। तभी मैडी बोली विस्पर में, तुम धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल, देखो ये ब्लू वन देखो कितनी सुंदर है, इजंट इट, क्या ये नहीं है? इजंट इट ब्यूटीफुल? यस सैड पैगी। पैगी ने कहा हाँ बिल्कुल। एंड देयर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। अरे वाह, ये देखो कि ग्रीन वन भी कितनी अच्छी है। सो माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, द 100 ड्रेस चैप्टर फर्स्ट। इसमें हमने देखा कि जो पैगी और जो मैडी है, मैडी तो गरीब घर से थी, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हमें कि मैडी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी इसका, वांडा का, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर, शी वॉज ऑल्सो लिविंग द सेम लाइफ, बट वन डिफरेंट वाज दैट शी वॉज नॉट लिविंग इन बोगिंग हाइट्स। और पैगी नहीं चाहती थी कि उसकी मजाक उड़ाई जाए, वो मैडी, ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है पैगी मैडी के चक्कर में। वो मैडी नहीं चाहती थी कि इसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन उसको मजबूरन उसका साथ देना पड़ता, क्योंकि उसको पता था यदि वो मजाक नहीं करेगी, मजाक नहीं उड़ाएगी, तो अगला टारगेट वही होगी, है ना। लेकिन वांडा ने कितना शानदार रिप्लाई किया। जब भी वो पूछती थी लड़कियां तुम्हारे पास 100 ड्रेस, वो कहती हाँ है, तो कितना गजब का रिप्लाई था उस बच्ची का। उसने 100 डिज़ाइन बना के दिखाई उसको, यानी पैसे नहीं थे, पैसे वाली नहीं थी, उसकी एक ही ड्रेस थी, 1 या 2 जो भी थी। उन बच्चों को पता भी था पैगी को कि ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही कि उसके पास एक ड्रेस है, वो भी जिद्दी थी ना इसीलिए। लेकिन उसने वास्तव में उन बच्चों को दिखा दिया कि कपड़े वगैरह कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते, टैलेंट इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ऑरल कंप्रीहेंशन के। व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांदा? आंसर इजीली पता है, क्योंकि दैट इफ शी वुड आस्क दीज थिंग्स शी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पैगी। व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ? वही कि उसकी जगह उसको मजाक उड़ाया जाएगा। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वाई? हु डिड मैडी थिंक? मैडी ने किसके बारे में सोचा? पैगी के बारे में, कि पैगी जीतेगी, है ना। वाई? क्यों? शी न्यू शी इज द बेस्ट गर्ल इन द
class, or everybody admire her. Who won the drawing contest? Wanda. What had the winner drawn? 100 designs, 100 ड्रेसेस उसने डिजाइन की थी. ठीक है. तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दूंगा, वो अपनी नोटबुक्स में लिख लेना. इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेकंड पार्ट हो रहा है नेक्स्ट. वी आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट टुमारो. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, बाय.